Start. Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Today our topic is fundamental trigonometric identities. In the previous class we have studied introduction to trigonometry, and now our topic is fundamental trigonometric identities. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Objectives are: after attending the lecture you will be able to derive the fundamental trigonometric identities, and number 2, you will be able to apply fundamental trigonometric identities, and third is you will be able to suggest the formula for the given question when we do the exercise. So you will able to suggest the correct fundamental trigonometric identity or formula for the given question. So our first trigonometric identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the basic fundamental trigonometric identity, and now we are going to derive this. And how can we use this trigonometric identity, we will study further. Derivation. In the adjacent figure ABC, this is the figure given here, triangle ABC, adjacent figure is a right triangle, right angle triangle, or you may say in short right triangle also, with right angle at C. You are looking here, C is the right angle, so this triangle is right angle triangle, and the considering angle is theta at A. Measurement angle A we are considering as theta. So by applying Pythagoras theorem on this right angle triangle, and you know very well what is the mathematical form of Pythagoras theorem. Yes, c square is equal to a square plus b square. This is the mathematical form of Pythagoras theorem, and we can write it like this also: a square plus b square is equal to c square. So this a square plus b square and equal to c square, when we divide this equation by c square, if you will divide this equation by c square on both the sides, so we get a square upon c square, b square upon c square, and c square upon c square, and c square upon c square will become 1, and you can see here, yes, a square upon c square plus b square upon c square is equal to 1. Now we are taking the whole square just like this, a upon c whole square plus b upon c, we can write it all like this also, b upon c whole square equal to 1. This a upon c, if we will see this value in our figure, yes, here
राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और आपको पता है कि कैपिटल A के सामने जो लेंथ है वो स्मॉल a, और कैपिटल C के सामने जो लेंथ है वो स्मॉल c, और कैपिटल B के सामने जो लेंथ है वो स्मॉल b। लिहाजा C स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एंड वी हैव a अपॉन c in our derivation we have a upon c. So what is the value of a upon c? See here in rough work, you know very well, we have done in previous lecture trigonometric ratios. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, and according to our figure perpendicular is a and hypotenuse is c. So a upon c means it is the value of sin theta. So we can write sin theta instead of a upon c. a upon c की जगह हम sin theta लिख सकते हैं। इसी तरह b upon c. So we can see here next trigonometric ratio cos theta is equal to b upon h means base upon hypotenuse, and in our figure base upon hypotenuse b upon c is the value of cos theta. So we can write cos theta instead of b upon c. Yes, here b upon c की जगह हमने cos theta लिख दिया, और is equal to 1, right hand side is same 1. When we taking a square, so this square we can write it like this, sin square theta, and आप इस स्क्वायर को कोस पे लगाएंगे, थीटा पे नहीं, तो कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड वी हैव प्रूव्ड इट. सो अब आपको अच्छी तरह मालूम हो गया कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, और आप इसको अच्छी तरह याद भी कर लीजिए कि पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आप थोड़ी कुछ मरतबा दोहरा लें साथ साथ ताकि आपको याद हो जाए. इस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, सो वी कैन राइट इट आल्सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. जब हम कोस स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. बेसिक फार्मूला ये है, इसी से ये फार्मूला बन गया. और अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो फार्मूला ये हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हम साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो एक फार्मूले से मज़ीद 2 फार्मूले और बन गए. इस तरह ये 3 फार्मूले आपको हासिल हो गए जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे. मगर बेसिक जो आइडेंटिटी है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ एक्टिविटी 2, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्रूव डेट साइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसको भी हम प्रूव करते हैं. ये भी उसी राइट एंगल ट्राइंगल से भी प्रूव हो सकती है, लेकिन यहाँ मैंने एक दूसरा मेथड आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप दूसरे तरीके से भी सीख लें. प्रूव करने का एक तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को जो है आप राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएँ तो वो प्रूव हो जाती है आइडेंटिटी. लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, यस, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. तो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. स्टूडेंट, आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है. ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने की थी उसके मुताबिक है. टेन थीटा याद कर लीजिए, फार्मूला ये सिंपल फार्मूला है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. सिमिलरली टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ देखें आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज़. अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा और एलसीएम हो गया, और इसको अर्थमेटिक रूल के तहत हल करें, जैसे हम अर्थमेटिक में एलसीएम लेके हल करते हैं, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा कोस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई
कोस स्क्वायर थीटा, जो आपका एलसीएम है। और यहाँ आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसकी वैल्यू क्या होती है जी, बताइए 1। वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हम पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो हमारा बाई पुटिंग दिस वैल्यू, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा था। सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कोस है, लिहाजा सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा विच इज सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। यू कैन सी इन और क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड, और हम अपनी राइट हैंड साइड ले आए। इट मीन्स द आइडेंटिटी हैव प्रूव्ड। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद कर लीजिए। और इससे भी मज़ीद 2 फार्मूले आप बना सकते हैं। आइडेंटिटी को रिपीट कर लें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये वैल्यू आप ये फार्मूला जो है आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ये आ गया आपका फार्मूला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो हमने प्रूफ किया। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम वो राइट एंगल ट्राइंगल से भी प्रूफ कर सकते थे। यू कैन आल्सो प्रूव दिस बाय डिवाइडिंग बी स्क्वायर। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूफ करेंगे तो सी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको हासिल हो जाएगा। और थर्ड हमारी जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यू कैन प्रूव इट बाय द सेम मेथड। आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल से जिस तरह हमने डिवाइड करके किया था कि पहले सी स्क्वायर से डिवाइड किया, और फिर यहाँ पर आपको बताया बी स्क्वायर से डिवाइड कर लें अगर आप करें, और इसको जिस तरह मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया उस तरह भी कर सकते हैं। और ये वाली आइडेंटिटी को भी दोनों तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए, तो आप खुद करेंगे तो आपको करना आएगा, ठीक है। एक्टिविटी 3, प्रूफ डेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन है। अब हम इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने प्रूफ की हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो इसका एप्लीकेशन है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड को लेके राइट के इक्वल ले आओ, या राइट साइड को लेके लेफ़्ट साइड के इक्वल ले आए, तो हमारे लिए जो भी इजी हो वो हम कर सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो विल सॉल्व इट। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? अभी फर्स्ट आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में निकाली थी। तो वो अब अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर की थीटा की जगह आ गया, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ब्रैकेट में रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन किया, 2 1 जा 2 माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 2 यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। जैसे आम अलजबरा में हम करते हैं इसको, वही स्टेप्स हैं यहाँ पे। 1 माइनस 2 क्या होगा जी बताएं? यस -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दें और -1 को बाद में लिख दें, क्योंकि ये हमारी राइट हैंड साइड है। बिल्कुल सेम मैच करनी चाहिए राइट हैंड साइड। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ गया जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको सॉल्व करके राइट ले आए, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया और प्रूफ आपने कर दिया। बहुत इजी है। आप इसी तरह के सवाल हैं आप और कीजिएगा। एक सवाल और आपके लिए कर देते हैं। एक्टिविटी 4, प्रूफ डेट साइन अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है
और इम्पोर्टेंट है, कई एक दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड लाएंगे इंशाल्लाह। पहले आप मुझे बताएं कि 1 माइनस कोस थीटा जो हमारा डिनोमिनेटर है, आप बताएं कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। याद है हमने ये यूनिट नंबर 2 में कॉन्जुगेट सीखा था जी। कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा इज़ 1 प्लस कोस थीटा। हम सिर्फ मिड की साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट बताना बहुत आसान है, सिर्फ बीच की साइन आप चेंज कर दें वो उसका कॉन्जुगेट होगा। लिहाजा हम क्या करेंगे इस सवाल में कि इस लेफ़्ट हैंड साइड को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर किसी नंबर से किसी टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये कर सकते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा ये आ गया, ब्रैकेट रखना होगा। और 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ये दोनों ब्रैकेट में हमने लिख दिए यहाँ पे, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है अलजेब्रिक के लिहाज से। जी फार्मूला है, हमने पढ़ा था, वी नो डेट a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू cos थीटा, लिहाजा a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिहाजा इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और cos इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और कैसे आया, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखें कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने ये निकाला था साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, न्यूमरेटर एज इट इज़ आपके सामने। अब ये साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइन कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ स्क्वायर कैंसिल होगा, याद रखें। पूरा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है। तो ये कैंसिल हो गया साइन थीटा पूरा, और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल किया तो नीचे आपके पास साइन थीटा रह गया। तो हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और विच इज़ योर राइट हैंड साइड। यू कैन सी इन द एक्टिविटी और क्वेश्चन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको राइट के इक्वल ले आए, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये भी क्वेश्चन आपने प्रूव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब सिमिलरली इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करें, इनकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें और इनकी मदद से सवालात को हल करें। बहुत आपको जो है वो मज़ा आएगा इंशाल्लाह सॉल्व करने में। होम असाइनमेंट भी यही है, सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 15.3 बाय योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा।